Okay, chaliye. So let me start today's topic. Good evening, all. So the first question for today I have written is a matrix A is given by 0, 2, 3, minus 4. Okay, and KA is given by 0, 2K, 2B, and minus 4K. Okay, so we have to find out what is the value of B minus A minus K. Okay, so how to solve it? See, this Ka is given, okay, and A is given here. So can we find Ka by multiplying K into in this matrix 0, 3, 2, and minus 4? Am I correct? Yes. So with this, I can conclude that this is 0, 2K, 3K, and minus 4K. Okay. Yes. So this is nothing but Ka. So now you compare this Ka with the given Ka. Okay. So you compare these two matrix. So you can say this is 0, 2B, 2K, minus 4K is equal to this 0, 3K, 2K, and minus 4K. Just compare it. So you will find out. Okay. So 0, 2K, 3K, and minus 4K. And this question and given is 0K. Okay. Chaliye. So with the help of this, yes. Okay. So let me correct this. Okay. Sorry. Wait. Let me correct the question. This is 0, 3, 2, minus 4, and Ka is given by. Let me correct it. Let me please correct the question. Yes. So the question is 0. This is 3A. This is 2B, and this is 24. Now solve it. Okay. This is the question. Yes. So now you can equate it with 0, 3A, 2B, and 24. So equate it. So with this you will say 0, 3A, 2B, and 24. Okay. So individual element you will compare. So you can say 2K equal to 3A. You will say 2K is equal to 3A. Equation number 1. Okay. Now equation number 2 will be 2B is to be same. So minus 4K is equal to 24. Okay. Am I clear? So now from here you can say K is 24 upon 4, that is minus 6. So K is minus 6. So question is K is minus 6. Okay. K is minus 6. So now you can say that A is 2 into minus 6 upon 3. Hence it is minus 4. So A is minus 4. Okay. So now remained is B. Okay. So yes. So 3K. Yes, it is 3K na. This is 3K. So 3K is equal to 2B. Wait a minute. In adding you all people, I have done this. Okay. So 3K equal to 2B. So now B is 3 into minus 6 and divided by 2. So it is minus 9. Okay. So B is nothing but minus 9. So let me zoom it out. Those are late. Please write it down. So the resultant we can say we have to find B minus A minus K. So B we determined is minus 9. Then
A value we have found is -4. So it is -4 and then minus and k. K is how much? K we found -6. Okay. So this is -9 plus 4 plus 6. That is 1. So B minus A minus K is 1. Yes. Okay. So let me move to question number 2 for today. The question is find matrix X and Y. Find matrix X and Y. Given is 2x minus y is equal to 3, 3, minus 3, 3, 0 and 2. This matrix is 2x minus y. Similarly, 2y plus x is given by 2y plus x is given by 4 minus 1, 1, 4 and 5 and minus 4. Okay, this is given by 2y plus x. Okay, so now we have to find out values of x and y. So what we'll do, same as linear equation, we will solve it. Okay, so let us say this is equation number 1 and this is equation number 2. This is equation number 1 and this is equation number 2. So when we add 1 and 2, let me add 1 and 2. Okay, but if we will add it by multiplying 2 into 1, अगर हमने इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमें 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इंडिविजुअल एलिमेंट में होगा, सो इट विल बी 6 माइनस 6 0 6 6 4. कोई डाउट है इसमें किसी को? क्या करा हमने? सिंपल इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4x माइनस वाई एंड इज इक्वल टू ये हो गया 6 6 इंडिविजुअल एलिमेंट का 2 का मल्टीप्लाई हो गया. ओके, सो दिस इज वेरी मच क्लियर. नाउ इक्वेशन दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 3 और 2 को ऐड कर लीजिए. सो इफ यू विल ऐड इक्वेशन 3 एंड 2, व्हाट यू विल गेट? 4x माइनस 2y प्लस 2y प्लस x इज इक्वल टू क्या है पहला मैट्रिक्स? 6 6 माइनस 6 6 0 4 प्लस दिस इज 4 माइनस 1 इट इज 1 4 5 माइनस 4. समझे क्या? ओके, सो LHS क्या हो गया? 2y और 2y कैंसिल, क्या बचा? 4x प्लस x. कितना बचा? 5x. अंडरस्टूड? नाउ इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड हो जाएगा, सो 6 प्लस 4 कितना? 10. 6 माइनस 1 कितना? 5. माइनस 6 प्लस 1 कितना? माइनस 5. 6 प्लस 4 कितना? 10. 0 प्लस 5 कितना? 5. 4 माइनस 4 कितना? 0. सो दिस इज नथिंग बट 5x. ओके, सो कैन यू से मैट्रिक्स x विल बी 5 से डिवाइड कर दो, सो इट इज इंडिविजुअल में डिवाइड होगा 10 by 5 5 by 5 minus 5 by 5 5 upon 5. This is 10 upon 5 0 upon 5. Okay, so let me zoom it out so that you can see the complete question altogether. Okay, so this is nothing but we can say 2 minus 1 1, it is 1, it is 2, it is 0. Okay, so please write it down and let me know when done. ये हो गया x का वैल्यू. So similarly can you find out y? So y is 2 into x minus मैट्रिक्स जो 3 minus 3 0. Let me tell you what I am telling. चलिए, so इतना आपने लिखा. चलिए, ओके, सो ये इक्वेशन जो 1 है ना, इसमें हमने क्या करा? 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 2 1 माइनस 1 2 1 0. ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस मैट्रिक्स y इज इक्वल टू क्या मैट्रिक्स है? 3 माइनस 3
0 3 3 2. So can you find out the value of 2, value of a y? Please find it out, let me know when done. Okay, so y will be, ये 2 का इंटीजर में मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 माइनस 2 2, इट इज 2 4 0, अंडरस्टूड, माइनस ये माइनस में आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0 3 3 2 एंड इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट है वो है वाई मैट्रिक्स, अंडरस्टूड। सो क्या लिखेंगे हम, 4 माइनस 3 कितना 1, माइनस 2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 3 माइनस 2 कितना, ये भी 1, ओके, ये 2 माइनस 0 दैट इज 2, 2 माइनस 3 कितना माइनस 1, 4 माइनस 3 कितना 1, 0 माइनस 2 कितना माइनस 2. So this is nothing but the Y matrix, 1 1 2 minus 1 minus 2. Please write it down and let me know when done. Yes. So the next is, write down topic, multiplication of matrices. The next is multiplication of matrices. लिखिए, multiplication of matrices. Okay, so multiplication of matrices is the next we are talking about. चलिए ठीक, so let we take matrix A, let we take matrix A. चलिए उसकी ऑर्डर पे भी हम बात करेंगे अभी, ओके, सो लेट वी टेक मैट्रिक्स ए. चलिए, सो मैट्रिक्स ए है, उसकी ऑर्डर है m क्रॉस n. क्या है, m क्रॉस n, मतलब कितनी रो है, m रो है. सो A11 से लेकर A1n तक एंड AM1 से लेकर AMN तक, अंडरस्टूड, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को. सो दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. क्या है ऑर्डर मैट्रिक्स की, दिस ऑर्डर इज m क्रॉस n. ओके, ठीक है, वेरी नाइस. नाउ अनदर मैट्रिक्स B. अब अगर हमको इसको मल्टीप्लाई करना है तो जितने इसके कॉलम हैं, जितने मैट्रिक्स ए के कॉलम हैं उतने मैट्रिक्स बी की रो होना चाहिए, और लेट अस से इट इज n क्रॉस p, तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगा, अंडरस्टूड, m क्रॉस n और n क्रॉस p. सो n मस्ट बी नंबर ऑफ रोज इन दी मैट्रिक्स b. ठीक है, वो समझते हैं क्वेश्चन से क्या कहना चाह रहे हैं. सो द रिजल्टेंट विल बी, क्या कैसा बनेगा ये, इट विल बी B11, इसको हम लिखेंगे B1p, इट इज BN1 से लेकर BNP. ओके, अगेन इट्स ऑर्डर इज n क्रॉस p. सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A into matrix B, so the resultant will come, रिजल्टेंट लेट अस से मैट्रिक्स सी. सो इसकी ऑर्डर क्या रहेगी, इसकी ऑर्डर रहेगी m क्रॉस p. प्लीज राइट इट डाउन एंड लेट मी नो इफ डाउट. वी विल प्रूव इट विद वन क्वेश्चन. नाउ जस्ट राइट इट डाउन, है ना, इस क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं अच्छे से. सभी ने लिखा इतना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज द थिंग विच कम इनटू गेट. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आते हैं. लेकिन चलिए, सो क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर और क्वेश्चन से ही हम मल्टीप्लिकेशन समझते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन है पहला, इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय 0 1 2, इट इज 1 2 3, देन 2 3 4. ठीक है, एंड मैट्रिक्स बी इज गिवन बाय 1 minus 1 2, it is minus 2 0 and minus 1. ओके, तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, कैसे पता करेंगे. इसकी ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3. इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2. अच्छा, तो जो रिजल्टेंट आएगा, क्या रिजल्टेंट आएगा, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, लेट अस से मैट्रिक्स सी. तो उसकी ऑर्डर क्या रहेगी, 3 क्रॉस 2.
क्या रहेगी ऑर्डर 3x2। ओके, दिस इज द मेथड कि हमने जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या निकाले। अंडरस्टूड। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। So write it down, then we will discuss. बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं इसको। इतना सभी ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है? एनी डाउट? चलिए, इसको हमने लिखा रो 1, इसको लिखा रो 2, इसको लिखा रो 3, इसको लिखा C1, इसको लिखा C2। अंडरस्टूड। सो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी को हम लिखेंगे R1 C1, यहां पर लिखेंगे R1 C2। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम बन गया, पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम बन गया। अंडरस्टूड। देन R2 C1 एंड देन R2 C2। ठीक है, एंड देन R3 C1 एंड देन R3 C2। समझे? तो इसकी ऑर्डर क्या रही? देखिए, 3 एलिमेंट आ गए, 3 रो आ गई, एंड कॉलम कितने आ गए? 2 आ गए। अंडरस्टूड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट R1 C1 and each element we have to find out. Just write it down and let me know when done. चलिए, so let me discuss it. So 0 into 1, that is 0 into 1 plus 1 into minus 1, 1 into minus 1 plus this 2 into 2, so 2 into 2 क्या हो गया? R1 C1 आ गया। so R1 C1 आया 0 minus 1 plus 4, that is 3। ठीक है, मैं यहां लिखते जाऊं A into B C मैट्रिक्स। R1 C1 कितना आया? 3। अंडरस्टूड? एनी डाउट? वेरी नाइस। नाउ R1 C2, सो पहली रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू माइनस 2, 0 इंटू माइनस 2। समझ रहे ना सभी? देन 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, देन 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1, तो कितना हो गया? 0 प्लस 0 माइनस 2। सो R1 C2 कितना हो गया? -2। ठीक है, विश्रुत सभी को क्लियर है? वनश्री क्लियर है? कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं? चेक करते जाना। चलिए, सो नेक्स्ट इज R2 C1। सो R2 C1 क्या होगा? R2 क्या है? 1 2 3। C1 क्या है? 1 minus 1 2। so I will write 2 into 1, 2 into 1, 3 into minus 1 plus 3 into minus 1, then 4 into 2, then 4 into 2। so कितना हो गया ये? 2 minus 3 plus 8, so 10 minus 3 is 7। ठीक है, क्या हो गया ये? कुछ मिस्टेक? R2 C1 1 into 1, ओहो, मैंने शायद तक R3 into C1 ले लिया। ये दिस इज R3 into C1 ना। 2 into 1, 3 into minus 1, 4 into 2, यस, तो मेरा ये R3 C1 आ गया। नाउ सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट R2 C1। सो R2 C1 क्या रहेगा? 1 into 1, ठीक है, 2 into minus 1, ठीक है, then 3 into 2, so it is 1 minus 2 plus 6, so it is nothing but 5। ठीक है, similarly find out other two, it will come -5 and -8 and order is 3 cross 2। ठीक है आदित्य, write it down, ask me if any doubt। वनश्री, हमीदा, अंकिता, कुणाल, तुषार। so this was the matrix multiplication। now the next question that is very interesting, Adit, I expect answer from you।
So matrix A is given by 0, 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2 and this is 0. Okay, this is matrix A. And I2 क्या होता है? It is nothing but unit matrix 1 0 0 1. ठीक है, this is I2. So the question is LHS is I plus A is equal to I minus A into it is cos alpha, this is x and this is y. So question is find x and y. चलिए, so write down the question and then try to solve, otherwise we will solve. Okay, so let me start. So first of all LHS क्या है? LHS, so first of all write LHS is I plus A. So what is I plus A? I plus A will be matrix I, that is 1 0 0 1, plus A is 0 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2, it is 0. Okay, so LHS क्या हो गया? It is 1, it is 10 alpha by 2, it is minus 10 alpha by 2 and it is 1. Very nice, everybody clear with this? Okay, चलिए अब RHS में क्या है? RHS में है I minus A is equal to, okay, so I minus A. So what is I minus A? First of all let me write I minus A. So I minus A is equal to 1 0 0 1 into, okay, A मैट्रिक्स क्या है? 0 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2 and this is 0. Okay, minus, this is minus. So resultant is 1, it is 10 alpha by 2, this is minus 10 alpha by 2 and this is 1 minus 0, it is 1. Okay, so now into cos alpha this one. So LHS is, यहां तक सभी का क्लियर है? Okay, so now LHS is 1 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2, it is 1, is equal to 1 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2 1 into क्या है मैट्रिक्स? cos alpha, it is x, it is y, it is cos alpha. Okay, so to solve this matrix I have two tricks. First one is यहाँ इसका RHS से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड देन इक्वेट कर लो, तो यू विल गेट द आंसर, नंबर 1. नंबर 2 इज यू कैन टेक इनवर्स. सो सेकंड आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल सॉल्व इट एंड वी विल फाइंड द इनवर्स. ओके, चलिए ट्राई करिए पहले. ओके, यहां तक सभी लोगों ने लिखा है. नाउ व्हाट आई विल डू, वी विल डू जस्ट मल्टीप्लीकेशन. इट इज 1, it is 10 alpha by 2, it is minus 10 alpha by 2 and this is 1. Okay, is equal to ये रो 1 ये कॉलम 1, so r1 into c1, so it is cos alpha and it is plus y into 10 alpha by 2. सही है, तो ये रहा मेरा r1c. ओके, देन r1c2, so r1c2 क्या होगा? 1 into x, that is x plus cos alpha into 10 alpha by 2. समझे? कोई डाउट इसमें? अब minus 10 alpha by 2
into cos alpha, and this is minus x into tan alpha by 2 plus cos alpha. अब इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर. चलिए लिखिए. वेरी गुड अली. साइन माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा, वेरी गुड. चलिए तुषार प्रेरणा, वेरी नाइस. चलिए ठीक है. सो नाउ वी विल इक्वेट इट. तो आप कैसे इक्वेट कर लिए? 1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस वाई टेन अल्फा बाई 2. राशि आप हो कि नहीं? सो 1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस वाई टेन अल्फा बाई 2. अंडरस्टूड? सो नाउ बहुत ही इजी है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए. 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू, हाँ शुभम को डाउट है, वाई टेन अल्फा बाई 2. समझे? चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए. ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक दो फॉर्मूले लिखा रहा हूं, दो फॉर्मूले लिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से. कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, पता है क्या होता है? एंड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है? ये तो सभी को पता है, 1 होता है. अंडरस्टूड? नाउ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है कॉस 2 अल्फा. समझे? तो अभी हमारे पास क्या है यहां पर 2 अल्फा. तो हमने क्या लिख दिया इसको, मान लीजिए अगर मैं इसको अल्फा को अल्फा बाई 2 लिख दूं सब जगह, तो ये अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2, ये भी 2 अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2. ऐसा क्यों करा? ताकि मुझे 1 माइनस कॉस अल्फा मिल जाए. मुझे क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस अल्फा. तो इसमें से इसको माइनस करूं, तो 1 माइनस कॉस अल्फा कितना आएगा? ये माइनस ये, कॉस से कॉस कैंसल, तो इट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2. किसी को कुछ भी डाउट? किसी को कुछ भी डाउट नहीं ना? तो 1 माइनस कॉस अल्फा कितना हो गया हमीदा? इट इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2. सभी को सब कुछ क्लियर? वेरी नाइस. अब देखिए मुझे बताइए, y एंड टेन अल्फा बाई 2 को लिख दिया हमने साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2. इसको साइन को मैंने लिख दिया साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2. सो कैन बी से एक अल्फा बाई 2 और एक अल्फा बाई 2 कैंसल. समझे? तो यहां से मेरा y आ गया 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, एंड इट इज नथिंग बट, आपको पता है साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x. सो दिस इज नथिंग बट साइन अल्फा. तो y कितना आ गया हमारा? साइन अल्फा. वैसे ही हम x निकाल सकते हैं. ओके यस. सो ट्राई फॉर x ऑल्सो. जो x है वो आएगा सिमिलर वे में ही आएगा. इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहां से वो आ रहा है माइनस साइन अल्फा. ओके प्लीज राइट इट डाउन. चलिए सो दिस मच इज वेरी मच क्लियर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द y. तो y के लिए क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए. 1 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा. अब तो सिमिलर ही हो गया, सिमिलर क्वेश्चन ही हो गया. क्या हो गया? 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा बाई 2. क्या लिखा था अभी हमने इसको? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स टेन अल्फा बाई 2. क्या आएगा रिजल्टेंट? अभी तो करा हमने. दैट विल कम माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय टेन अल्फा बाई 2 को लिख दिया साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2. So that is nothing but minus sin alpha. That is the value of x. So x की value minus sin alpha और y की value sin alpha. Okay, maximum people have done this. So write down. Okay, very nice.
तो लेट मी क्लियर द कैनवास. यस, ओके, चलिए. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट रिमेंबर, very important thing you must remember, that is called property 1 of matrix. So property 1 is that is related to multiplication of matrices, that it is not commutative, not commutative. आप 2 into 3 is equal to 3 into 2 बोलते हैं तो वो होता है प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव, लेकिन मैट्रिक्स में वो नहीं होता. मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी कर रहे हैं, that is not equal to matrix B into matrix A. Please remember. So it is not commutative. It is not commutative. ठीक है. Okay. So now Nachiket, if AB is equal to minus BA, if AB is equal to minus BA, तब A and B are called, or A and B are said to be anti-commute, are called anti-commute. क्या मतलब एंटी कम्यूट का? एंटी मतलब माइनस साइन लग गया, ठीक है, एंटी मतलब माइनस साइन लग गया. सो इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एंटी कम्यूट. प्लीज राइट इट डाउन. ओके. लेकिन अगेन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ए बी इक्वल टू बी ए रहेगा. ओके. मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड पॉइंट लिखिए इसके अंदर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, of same order will be commutative, will be commutative. ठीक है. सो एक एग्जांपल देख लो इसके लिए, है ना. ये दो बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ये तो नहीं, ये तो केवल बोलने की बात है कि क्या बोलते हैं उसको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे तो वो कम्यूटेटिव रहेंगे, ए बी ले या बी ले. सो एग्जांपल ले लो, 1 0 0 2 and B is 3 0 0 4. क्या मेरी स्पीड आपको लग रही है तेज है? सो वी हैव टू चेक वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए और नॉट इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. हमने स्टेटमेंट तो लिख दिया है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव. सो लेट वी चेक. फाइंड ए बी फर्स्ट. A into B. So it is 1 0 0 2, it is 3 0 0 4. So it is 1 into 3 3 plus 0 into 0 0, then 1 into 0, that is 0, plus 0 into 4 0, then 0 into 3, that is 0, plus 2 into 0, that is 0, then 0 into 0 0 plus 2 into 4, that is 8. So this is 3 8 0 0. This is A into B. Similarly you can find out BA. दोनों की ऑर्डर सेम होना चाहिए. ये 2 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का होगा अगर सेकंड, तब ये रूल BA फॉलो नहीं करेगा. 3 0 0 4 and this is 1 0 0 2. So it is 3 into 1 plus 0, then 0 into 0, ये 0, ये 8. This will come. Just confirm it. So we can say when multiplication of diagonal matrices of same order will be commutative, it means AB equal to BA when it is only diagonal matrix. Okay. So मुझे एक फॉर्मूला बताइए, सबका बेसिक फॉर्मूला क्लास 10th का. क्या है फॉर्मूला? A plus B स्क्वायर. आप बिल्कुल चैट में आंसर दे दोगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
+2ab, यही बोलोगे? दिस इज गुड इनफ फॉर दी नंबर्स। ये किसके लिए गुड है? नंबर्स के लिए गुड है। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि ये तो एक मैट्रिक्स है, ये तो एक मैट्रिक्स है, तो क्या हम ये लिख पाएंगे? लेट वी चेक। हमको इसको लिखना पड़ेगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। समझे क्या? मैट्रिक्स में हमको ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो a इंटू ए हमने लिख दिया ए स्क्वायर, वेरी गुड। a इंटू बी क्या लिखा? ए बी, प्लस बी इंटू ए क्या लिखा? बी ए, प्लस बी इंटू बी क्या लिखा? बी स्क्वायर। बस यहां जिसने मिस्टेक कर दिया उसको -2/3। अगर जिसने ये तो +2 हो गया। अगर किसी ने इसकी बजाय ये लिख दिया ए स्क्वायर +2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, उसको मिल गए -2/3। और जिसने ये लिख दिया उसको मिल गए 2। यही डिफरेंस है गेट का। सिंपल, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, आप यही करते रह जाओगे, ये गलत मार्क्स ले आओगे और ये करोगे सही मार्क्स ले आओगे। ओके, तो कैन यू राइट what is a minus b square in terms of matrix? So I will write a minus b into a minus b. So it will be a square minus ab minus ba plus b square. लेकिन अलजेब्रा में क्या लिखते हो आप? a minus b square is a square plus b square, क्योंकि आप माइनस ए बी और माइनस बी ए को सेम ही लेते हो। समझे क्या? वेरी नाइस। सो दिस इज दिस वन। अगेन आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हो। चलिए ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट लेट मी टेल यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आधे लोग क्या बोल देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इमीडिएटली बिल्कुल उनका पेन ऐसा तेज चलेगा कि ये तो बहुत सिंपल चीज थी। यही गेट पे आपको धोखा दे दिया। समझ रहे हो? आप तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे, यही पढ़ा है बचपन से, और सोचोगे नहीं, लेकिन ये मैट्रिक्स है। सो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए माइनस बी ए, एंड माइनस ये माइनस बी स्क्वायर। ये कैंसिल थोड़ी होगा भाई लोगों। क्यों होगा कैंसिल? अगर दोनों सेम होते तो कैंसिल होता, अदरवाइज इट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए प्लस माइनस बी स्क्वायर। एम आई वेरी मच करेक्ट? एनी डाउट? तुषार, धनश्री, वंशिका? सो लेट मी क्लियर दिस एंड लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 2। आई एम क्लियरिंग द कैनवास। सो प्रॉपर्टी 2 इज, ओके, सो लिखिए प्रॉपर्टी 2। पहले क्या पढ़ लिया हमने? प्रॉपर्टी 1, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। प्रॉपर्टी 2 इज कॉल्ड एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब क्या है? एसोसिएटिव का मतलब है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। पहले अगर आपको ए बी सी का मल्टीप्लाई करना है तो आप ए बी पहले करो फिर सी से मल्टीप्लाई करो, या पहले बी सी करो फिर ए से मल्टीप्लाई करो। दिस इज द सेम। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, नाउ यू कैन राइट प्रॉपर्टी 3। सो प्रॉपर्टी 3 इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, यस प्लीज राइट इट डाउन। चलिए, एंड प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 बहुत ट्रिकी है, आ सकता है स्टेटमेंट वाइज में एक नंबर में आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ए जो है वो m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। क्या है आदित्य? ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ठीक है, सो अगर हमने लिखा आई एम मतलब
एम ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू भी ए ही होगा, एन इज इक्वल टू को मैं लिख सकता हूं ए इंटू आई एन। ओके, अंडरस्टूड क्या है इसका मतलब? चलिए, ए अगर है 3x2 का मैट्रिक्स, कितने का? 3x2 का मैट्रिक्स, ठीक है। सो 3 क्या हो गया इसके अंदर? m, और n क्या हो गया? 2। सो हम कह सकते हैं I3 इंटू ए इज इक्वल टू ए रहेगा, और a इंटू I2 वो भी a ही रहेगा। समझे? अभी तक तो गेट में नहीं आया है ये प्रॉपर्टी, बट इट मे बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, 1 मार्क्स का आ सकता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, चलिए, सो लेट मी क्लियर दिस। सो द क्वेश्चन इज तुषार, द क्वेश्चन इज 1x1 एक मैट्रिक्स है, क्या बोलते हैं इसको? रो मैट्रिक्स। सॉरी, इट इज 1 0 0 3 5 3, इट इज 2 1 2। ठीक है, ये है 1 1 x इज इक्वल टू गिवन 0। ठीक है, हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। चलिए करिए ट्राई। ओके, सो लेट मी सॉल्व। सो let me first multiply these two matrix, this and this, और इसमें तो एसोसिएटिव लगेगा, है ना, इसमें तो एसोसिएटिव रूल लग जाएगा। सो हमारे ऊपर हम किसका मल्टीप्लाई करें, आप लोग बताइए। चलिए, सो लेट मी डू 1x1 एंड विद दिस, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एंड इस 1 1x को हम सेम रहने देते हैं। ठीक है, चलिए, सो इसको हम सेम रखते हैं। नाउ 1 इंटू 1 प्लस 1, ये R1C1, ये R1C1, ये R1C2, ये R1C3। तो अब मुझे बताइए जो रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर क्या रहेगा? उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा रिजल्टेंट का? 1 इंटू C3 रहेगा ना, 1 इंटू 3, क्योंकि यहां पर आएगा केवल R1C1, यहां पर आएगा R1C2, यहां पर आएगा R1C3। एम आई क्लियर? इज इक्वल टू 0। सो R1C1 क्या रहेगा? 1 इंटू 1 प्लस x इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, केवल 1। देन R1 इंटू C2, सो 1 इंटू 3 3, x इंटू 5 प्लस 5x प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, R1C3 1 इंटू 2 2, x इंटू 1 प्लस x 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 1 x दैट इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखे इसको रिजल्टेंट? 1 5x प्लस 6 एंड इट इज x प्लस 4 इंटू 1 1 x इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट किसी को? आदित्य, प्राजक्ता, विघ्नेश, हमिदा? चलिए, थोड़ा टाइम में तो मुझे सबके नाम याद हो जाएंगे। सो 1 इंटू 1 क्या हुआ? 1, 5x प्लस 6 इंटू 1 5x प्लस 6, x प्लस 4 इंटू x एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू कितना? 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्या बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर, तो 5 प्लस 4 कितना? 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरा x आ जाएगा -9 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 अपॉन 2। सो x विल बी -9 प्लस माइनस 81 माइनस 28 कितना? 53 अपॉन 2। सो आ गया ये इरेशनल नंबर। ओके, सो x की वैल्यू हो गई -9 प्लस माइनस √53/2। सो
हो सकता है ऑप्शन में आपको ये एनएटी टाइप का आ जाए। चलिए, सभी लोगों का जब मैंने सेमिनार लिया था डाउट था, तो मल्टीपल सिलेक्ट में क्या हो जाएगा, यू हैव टू सिलेक्ट ए ऑल्सो, यू हैव टू सिलेक्ट बी ऑल्सो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल सिलेक्ट। यस, वेरी नाइस। यस, सो राइट इट डाउन। वेरियस काइंड्स ऑफ मेट्राइसेस, वेरियस काइंड्स ऑफ मेट्राइसेस। ठीक है, सो उसमें नंबर 1 लिखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नंबर 1 इज आइडेम्पोटेंट, नंबर 1 इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या मतलब है इसका आइडेम्पोटेंट का? जो CSIT वाले हैं वो तो उन सबको ये नाम याद रहना चाहिए, सो बहुत उनके लिए आसान होता है ना। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू A। ओके, वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। राइट, ब्रैकेट में लिख लीजिए, वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, सो A स्क्वायर इक्वल टू A। अंडरस्टूड? सो कैन यू से A स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर? दोनों साइड हमने A स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड हमने A स्क्वायर कर दिया। सो कैन यू राइट A स्क्वायर इज A, दैट इज A स्क्वायर। अंडरस्टूड? क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। इसको बोल सकते हैं A की पावर 4 इज इक्वल टू A स्क्वायर, दैट इज क्या, A ओनली। अंडरस्टूड? अगर मान लीजिए A की पावर 6, हम लिख सकते हैं A की पावर 4 इंटू A की पावर 2, दैट इज A स्क्वायर। A स्क्वायर, A की पावर 4 is also A and this is also A. This is A raised to A into A square, then A. Again A square is A, so A into A is A square, that is A. समझे क्या मतलब? इसका मतलब ये है A की पावर n is equal to A when n is greater than or equal to 2. When n is greater than or equal to 2. ठीक है? अगर मान लीजिए A की पावर 3 है तो क्या लिखेंगे, A स्क्वायर इंटू A। सो A स्क्वायर कितना है, A इंटू A कितना, A स्क्वायर। A स्क्वायर कितना, A की पावर 5, सो A की पावर 4 इंटू A। सो A की पावर 4 को लिखेंगे A स्क्वायर A, सो दैट इज A इंटू A, दैट इज A स्क्वायर इंटू A। सो A स्क्वायर कितना है, A, सो A इंटू A इज अगेन A। सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है A स्क्वायर इक्वल टू A, so I can conclude A की power n equal to A where n is greater than or equal to 2, idempotent matrix। इसका यूज क्या है, लेट मी टेल यू, दैट इज वेरी मस्ट। चलिए, सो द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेकेंड इज involutory matrix। involutory matrix, सो आइडेम्पोटेंट में हमने क्या देखा, आदित्य A स्क्वायर इक्वल टू A लिख दिया, तो इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स में A स्क्वायर होता है I। तो समझिए ऐसा क्यों होता है, ये बात नहीं है। बात ये है कि अगर A स्क्वायर इक्वल टू I आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एक नोटेशन गिवन है, ये क्यों है, वाई नहीं है। इट इज, इफ इट इज देन इट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। एम आई क्लियर? Okay, so this is involutory matrix, that is A square equal to I. It means A into A is equal to I. So it means A is equal to A inverse. Understood? A is equal to A inverse. This is called involutory matrix. ठीक है? So
I am giving you two questions. Both question is for homework, and the question is A is equal to 2 minus 1 1 minus 2 3 minus 2 minus 4 4 minus 3 है ना, एक मैट्रिक्स है ये. सेकेंड क्वेश्चन है मैट्रिक्स बी इज गिवन बाय -5 3 1 -8 5 2 0 0 -2. ठीक है. विच मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी एंड विच मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट. कौन सा मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है और कौन सा मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है. निकाल सकते हो, निकालिएगा, बताइएगा. जो निकाल लेगा मुझे 9004194885 पे व्हाट्सअप कर सकता है. सॉल्यूशन है ना, उसका फोटो लेके यू कैन व्हाट्सअप में. और इफ एनी प्रॉब्लम आई विल करेक्ट इट एंड सेंड यू बैक. ओके, प्लीज राइट डाउन.